Hello children, welcome you all in grade 5th. So guys, in this video I will explain a poem. I stood against the window. So this is the first poem from English Focus class 5th. So let's start. So first of all we will see the poet. Who is the poet of this poem? Roger Feilman. So as we always do, we will see the rhyme scheme first before starting the poem. So rhyming scheme. So what is rhyming scheme? Rhyming scheme are the words that make same sound. तो rhyming scheme क्या होती है? वो words जो आपस में same sounds बनाते हैं, those are called rhyme scheme. So here देख लेते हैं इसकी rhyme scheme. Window. सो अगर ये विंडो है हम इसको ए लेटर दे दें यहाँ पे, देन बार्स. तो विंडो एंड बार्स, सो ये दोनों सेम साउंड नहीं बना रहे हैं तो हम इसको बी लेटर देंगे यहाँ. देन फेरीज, अगेन इट्स अ डिफरेंट साउंड, सो सी लेटर वी हैव गिवन टू इट. देन स्टार्स, सो स्टार्स इज मेकिंग साउंड विद बार्स, तो हेयर सेम साउंड विल बी गिवन टू देम, बी. So what is rhyming scheme of it? A, B, C, B. Okay. Then again here we will see everywhere. अगर हम इस everywhere को, चलो मैं A साउंड ना देके इसको D साउंड देते हैं यहाँ पे हम, तो D. then chains, everywhere and chains, so they both are not making same sound, so I have given it letter E. Then simmering, so again it's making different sounds, so I have given letter F. And rains, so rains and chains, they both are making same sound, so the letter will be given same here, E. so D, E, F, E. सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कैसे राइमिंग स्कीम निकाली जाती है चैप्टर की. सो स्टार्ट करते हैं पोम. आई स्टूड अगेंस्ट द विंडो and looked between the bars, and there were strings of fairies hanging from the stars. So in this poem there is a little child and the child stood against the window. वो विंडो पे जाकर के खड़ा होता है and looked between the bars. So he was watching something outside the window. He was looking between the bars. So what is bars here? Bars is the partition of window. As you can see here, this is a window और हम इसमें अगर partition बना दें, it can be of iron or wooden partition, तो इनको हम bars बोलते हैं. So he was looking from the bars here, and there were strings of fairies hanging from the stars. So what he watched outside, he looked, there were lots of fairies. They were hanging from the stars by the strings. तो उसने क्या देखा, वो जैसे विंडो पे जाकर के खड़ा हुआ, उसने बार्स के थ्रू बाहर झांकना शुरू किया. तो वॉट ही वॉच देयर वर लॉट्स ऑफ फेरीज, वहाँ पे उसने फेरीज देखी. दे वर हैंगिंग फ्रॉम द स्टार्स, वो स्टार्स से नीचे हैंगिंग थी, झूल रही थी. Everywhere and everywhere in shining swinging chains, the air was full of shimmering like sunlight when it rains. तो everywhere and everywhere, when he watched outside the window, जहाँ जहाँ भी उसकी नज़र गई, everywhere सभी जगह, in shining swinging chains, वहाँ पे जो शाइनिंग और स्विंगिंग चेन्स लटकी हुई थी जिन पर होकर के वो परियां झूल रही थी, वहाँ से वो क्या देखता है, द एयर वाज फुल ऑफ सिमरिंग. सिमरिंग मीन्स हेयर झिलमिलाना, शाइनिंग. सो द एयर वाज शाइनिंग, तो वहाँ एयर में भी जो क्या थी, एक शाइनिंग थी, लाइक सनलाइट व्हेन इट रेन्स. और वो कैसी शाइनिंग थी, जैसे कि कभी बारिश हो तो बारिश में जो सनलाइट होती है, सनलाइट की वजह से क्या होता है, एक शाइनिंग हमें दिखाई देती है. जैसे बारिश में धूप निकली हुई हो, ऐसे हवा भी वहाँ झिलमिलाती हुई दिखती है. ऐसे ही सेम वो बच्चा देख पा रहा था कि जो वो परियां झूल रही हैं वहाँ पे. सो थ्रू द चेन्स
he watched the air full of simmering. Got it? Then they kept on swinging, swinging. They flung themselves so high they caught upon the pointed moon and hung across the sky. So they means here fairies. तो वो जो fairies थी, they kept on means continued. So they continued swinging and swinging. वो continue झूलती रही. They flung. Flung means होता है throw. तो उन्होंने क्या किया, खुद को थ्रो किया. तो यहाँ पे फ्लंग का मीन्स जो पुश से है. सो दे पुश देमसेल्फ सो हाई. तो उन्होंने अपने आप को इतना ऊंचा पुश किया झूलते हुए. दे कोट अपॉन द पॉइंटेड मून, कि जो वहाँ पे पॉइंटेड मून था ऊपर स्काई में, उन्होंने उसको भी पकड़ लिया. मीन्स दे पुश दैम सो हाई दे टच द मून ऑल्सो, पॉइंटेड मून ऑल्सो, एंड हंग अक्रॉस द स्काई. जो कि मून जो स्काई में था वहाँ पे उन्होंने जो इतनी तेज अपने को पुश किया स्विंग करते हुए कि उन्होंने जाकर के उस पॉइंटेड मून को पकड़ लिया. एंड हंग अक्रॉस द स्काई. और वहाँ पे वो जो मून था वो हंग था कहाँ पे, स्काई में. तो जो परियां थी उन्होंने भी क्या किया, मून को जाके पकड़ लिया और मून के पास वो चली गई. देन and when I woke next morning, so I means here the little child we are talking about. तो this child woke next morning, जब next morning वो सो करके उठा, there still were crowds and crowds. So again he just peeped out the window, उसने दोबारा से विंडो के बाहर झांका. So there still were crowds and crowds in beautiful bright bunches all sleeping on the clouds. So still he could see outside there were crowds and crowds means there were the fairies were still there, कि fairies अभी भी वहीं पे उसे दिखाई दी जहाँ पे उसने देखा था सोने से पहले. तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सो करके जागा तो उसने देखा परियां अभी भी वहीं हैं. इन ब्यूटीफुल ब्राइट बंचेस ऑल स्लीपिंग ऑन द क्लाउड्स. सो वो सब क्या कर रही थी, इन द ब्यूटीफुल ब्राइट बंचेस they all were sleeping. And where they were sleeping, they were sleeping on the clouds. वो बादलों के ऊपर सोई हुई थी. आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. ज़रूर मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी. वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज वर्क एंड क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे. तो जब तक के लिए बाय.